Good morning, students. In ENGCE 101, we were going through the dinner for the boss. So, these very chapters, as I have told you, written by Bhishma Sahani. Originally, it is written in Hindi. Chief Ki Dawat is the title of the story, and it deals with treatment received by elderly people at the hands of their children. कि बच्चे उनके साथ कैसा behavior करते हैं. We have already gone through Shamnath and his wife, their treatment with their mother, and the attitude of the mother who always feels like she just keeps quiet. She doesn't say even a single word whatsoever is being said by her children. Even if her daughter-in-law is there, even her son is there, she receives each and everything, and she is given directions because an American boss of the son is coming. So now party is going on. That very lady is forced to sit on veranda. She is sitting in a chair and she is not allowed to sit with, she is ordered to keep her feet down, but she is an elderly woman and she keeps her feet up as usual. She is in a habit of sitting on a chair. So what happens now, when Shamnath comes out after taking drinks and they are going to the dining hall for taking dinner, and guests are with him, what happens? On the way, what does he see? He sees his mother, and she is sitting the way she used to sit, and she was snoring also. Usko neend bhi aayi hui thi, to she was snoring, and her head was lolling here and there. And suddenly when she saw Shamnath, she stood up and she got upset कि ये क्या हो गया. And Shamnath felt embarrassed. उसको लगा कि ये क्या हो गया. He felt like pulling her down from the chair, but he couldn't do so as guests were there. So what did he do? Let us start again. Let us start rest of the chapter. When they saw his mother, when all the guests, सारे guests ने जब उसकी mother को देखा, some of the wives of Indian officials begin to giggle. Giggling is like मुंह बंद करके हंसना. And suddenly what happened? But then the boss said quietly, "Poor dear, बेचारी." At once mother hastily sat up straight. अब mother एकदम haste होता है, जल्दी से वो सीधी बैठ गई. Seeing so many people in front of her, अपने सामने इतने लोगों को देख के, she was so alarmed, she was so alert that she could say nothing. वो कुछ नहीं बोल पाई. She immediately pulled her दुपट्टा over her head. अपने सिर पे दुपट्टा लिया. And stood up and began to stare at the ground. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ग्राउंड की तरफ घूरना उसने शुरू किया. Her legs begin to feel unsteady and her fingers tremble. उसकी टांगें जो थी वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, और उसकी जो उंगलियां थी वो कांपने लगी डर के मारे. अब पता नहीं क्या होगा. Mother, go and sleep. What did he say? Mother, जाओ और सो जाओ. Why are you up so late? इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? asked Shamnath and looked abashedly at his boss. और बड़ा अजीब सा फील करके अपने बॉस की तरफ देखने लगा. There was a smile on boss's face. बॉस के चेहरे पे स्माइल था. From where he was standing, he said नमस्ते. जहाँ वो खड़ा था उसने बूढ़ी औरत को नमस्ते किया. Hesitatingly, शर्माते हुए. Shrinking inwardly, अपने आप को समेटते हुए. Inward होता है अंदर की तरफ, समेटते हुए, shrink होते हुए. Mother joined her hands. माँ ने अपने हाथ जोड़े together, and in one hand inside the दुपट्टा, और inside दुपट्टे के अंदर एक हाथ में she held her prayer beads. उसने जो माला पूजा वाली होती है वो prayer beads से रखे हुए. And her another hand was outside दुपट्टा. उसका दूसरा हाथ दुपट्टे के बाहर था. She couldn't complete her नमस्ते properly. इसलिए एक हाथ दुपट्टे के अंदर था, एक बाहर था, तो नमस्ते भी प्रॉपर नहीं हुई. Shamnath was annoyed by this too. श्यामनाथ को बहुत गुस्सा आया. बिकॉज अब देखो ना, पेरेंट्स आर इन हैबिट ऑफ लिविंग देयर लाइफ फॉर ईयर्स इन द सेम वे दे हैव बीन लिविंग राइट नाउ. सालों से वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी रहे हैं, और सडन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदल जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है. अब वो वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है. मीनवाइल द बॉस स्ट्रेच्ड आउट हिज राइट हैंड फॉर मदर टू शेक. इन बिटवीन क्या हुआ? बॉस ने स्ट्रेच मीन्स आगे बढ़ाया अपना सीधा हाथ मदर की तरफ कि ताकि वो हैंड शेक करे. मदर वॉज इवन मोर अलार्म्ड. अब मदर और ज़्यादा अलर्ट होगी, वो और ज़्यादा परेशान हुई. मदर शेक हैंड्स. अब बेटा उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि शेक हैंड्स, बट हाउ कुड शी, वो कैसे मिलाती? शी हैड प्रेयर बीड्स इन हर राइट हैंड. उनके हाथों में जो था राइट हैंड, उसमें प्रेयर बीड्स थे, जो माला थी वो थी. आपको शायद पता होगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं, तो दे डोंट फील लाइक शेकिंग हैंड्स विद पीपल हु आर पुराने टाइम की बात कर रही हूँ. तो वो लोग क्या करते थे? दे डिडंट फील कंफर्टेबल इन शेकिंग हैंड्स विद पीपल हु आर इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. तो मदर भी वैसी है, क्योंकि उसने क्या कहा था? इफ़ नॉन वेज इज कुक्ड देन आई वोंट टेक फूड. तो मैं खाना नहीं खाती हूँ. सो व्हाट हैपेंड? मीनवाइल द बॉस स्ट्रेच्ड हिज राइट हैंड फॉर मदर टू शेक. शी वॉज अलार्म्ड. मदर शेक हैंड्स, बट नाउ हाउ कुड शी हैड प्रेयर बीड्स इन हर राइट हैंड. इन हर कन्फ्यूजन में उन्होंने क्या किया? शी पुट हर लेफ्ट हैंड इन द साहब्स.
उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेच कर दिया। श्यामनाथ बिगिन टू बर्न इनसाइड, श्यामनाथ को बड़ा गुस्सा आया अंदर अंदर से। एंड वाइफ्स ऑफ द इंडियन ऑफिशियल्स टिटर्ड, और इंडियन ऑफिशियल्स की वाइफ्स ने जो है वो चीज़ बड़ी अजीब सी तरह से रिएक्ट किया, उन्होंने अजीब तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया। नॉट लाइक दैट मदर, यू नो यू शेक हैंड्स विद योर राइट हैंड, कहते नहीं तुम राइट हैंड से मदर हैंड शेक करोगी, गिव हिम योर राइट हैंड, अपना सीधा हाथ दो। बट बाय देन, लेकिन तब तक द बॉस हैड शेकन हर लेफ्ट हैंड सेवरल टाइम्स, बॉस ने अल्कोहल भी लिया था, ही वॉज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल, तो मदर का जो राइट हैंड था उसको लेफ्ट हैंड को ही हाथ में लेके वो काफ़ी शेक कर चुके थे। एंड वो सेइंग इन इंग्लिश, एंड वो सेइंग इन इंग्लिश मीन्स ही डिडंट नो हाउ टू यूज़ हिंदी, हिंदी में कैसे बात करनी, तो ही वॉज आस्किंग हाउ डू यू डू, कि आप कैसे हो। टेल मदर आई एम फाइन आई एम वेल। अब वो बेटा जो है, माँ ने पहले क्या कहा था, देखो प्रीवियस स्टेटमेंट में क्या था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई एम एन इलिटरेट ओल्ड वुमन, तो अपने बॉस को बता देना। लेकिन अब बेटा क्या चाह रहा है, बेटा चाहता है कि मदर इमीडिएट रिप्लाई जो है वो इंग्लिश में दे। सो व्हाट डिड ही से, टेल हिम मदर, बॉस को जवाब दो आई एम फाइन आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। His mother muttered something, उसकी मदर ने मुंह में कुछ बोला, बट इट वॉज नॉट ऑडिबल। मदर इज सेइंग दैट शी इज़ फाइन, माँ कह रही है कि वो फाइन है। गो ऑन मदर से हाउ डू यू डू, कि माँ आप पूछो बॉस को हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। शी सेड स्लोली हेजिटेटिंगली हाउ डू मीन शी डजंट नो हाउ टू स्पीक, तो वो कैसे बोलेंगी एकदम से, बड़े धीरे से और झिझकते हुए बस यही कहा। देयर वॉज अ पील ऑफ लाफ्टर, पील ऑफ लाफ्टर मीन्स ठहाके लगे ज़ोर ज़ोर से। दिस द एटमोसफियर बिकेम लेस टेंस, अब जो टेंशन हो रही थी श्यामनाथ को वो ख़त्म होगी। द साहिब हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, जो बॉस था उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया था। पीपल बिगिन टू लाफ एंड जोक विद वन अनदर, लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे एक दूसरे से। श्यामनाथ बिगिन टू फील स्लाइटली लेस एजिटेटेड, श्यामनाथ का गुस्सा धीरे धीरे जो है वो कम होने लगा। देयर वॉज द साहिब वॉज स्टिल होल्डिंग ऑन टू मदर्स हैंड, अभी भी साहब ने जो मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। द मदर वॉज कवरिंग विद एम्बेरसमेंट, और मदर जो है बड़ी अनईजी फील कर रही थी, वो एम्बेरस्ड फील कर रही थी, वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी। देयर वॉज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल कमिंग फ्रॉम द साहिब्स माउथ, और बॉस के मुंह से जो है वो अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। श्यामनाथ सेड इन इंग्लिश माई मदर कम्स फ्रॉम अ विलेज, शी लिव्ड हर होल लाइफ, कि मेरी माँ जो है वो गांव से है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं पे गुजारी है। दैट्स वाई शी इज़ शाई ऑफ यू, इसलिए वो आपसे शर्मा रही है। एट दिस द बॉस लुक्ड हैप्पी, बॉस बड़ा खुश हुआ। ही सेड रियली आई लाइक द विलेज फोक अ लॉट, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। देन योर मदर मस्ट नो द विलेज सॉन्ग्स एंड डांसेस, तो आपकी मदर को विलेज सॉन्ग और डांसेस आते होंगे। ही स्टार्टेड टू गेज हैप्पीली एट हर, बड़ी खुशी से वो उसकी तरफ देखने लगा। एंड नॉडिंग हिज हेड, और अपना सिर हिलाने लगा बॉस। मदर द साहब इज़ आस्किंग यू टू सिंग अ सॉन्ग, सम ओल्ड सॉन्ग, कि माँ साहब चाहते हैं आप एक पुराना गाना गाओ, कोई पुराना वाला। यू मस्ट नो लॉट्स ऑफ देम, आपको आते होंगे। हिज मदर रिप्लाइड सॉफ्टली, माँ ने धीरे से क्या कहा, हाउ कैन आई सिंग बेटा व्हेन हैव आई एवर संग, कि मैंने गाने कब गाए, मैं कैसे गा सकती हूँ। बिकॉज देखो वी नो अबाउट आवर पेरेंट्स, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, उनकी क्या हॉबीज़ है, क्या हैबिट्स है। तो इफ़ वी आर इंसिस्टिंग देम टू डू समथिंग विच दे हैव नॉट डन, दे हैव नेवर डन टिल टुडे, जिन्होंने आज तक नहीं की तो आज वो लोग कैसे करेंगे। सो सेम इज़ द केस विथ श्यामनाथ्स मदर, उन्होंने कभी गाना गाया ही नहीं। शी इज़ बीइंग पुट इन अ सिचुएशन वेयर शी इज़ फोर्स्ड टू सिंग अ सॉन्ग बाय हर ओन सन, इंस्टेड ऑफ वो बॉस को रोकने की कि मेरी मदर को नहीं आता है। वो क्या चाहता है, बॉस को खुश करना है तो माँ को गाना गाना पड़ेगा, वो इसको इंसिस्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है। वाह मदर कैन एनीवन रिफ्यूज़ अ गेस्ट, अब मदर को उसने फंसा दिया कि क्या कोई गेस्ट की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करता है, मना करता है। द साहब इज़ सो डिलाइटेड, साहब इतने खुश हैं। इफ़ यू डोंट सिंग, अगर आप गाना नहीं गाओगे, ही विल टेक इट बैडली, उनको बहुत बुरा लगेगा। व्हाट कैन आई सिंग बेटा, मैं क्या गाऊँ बच्चे, या बेटा व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानती हूँ। वाह सम रियली गुड फोक सॉन्ग, और वो एक फोक सॉन्ग को जो रेफ़र करता है, कहते हैं एक फोक सॉन्ग आप गा सकते हो, बहुत अच्छा गाते हो। एट दिस सजेशन द इंडियन ऑफिशियल्स एंड देयर वाइफ्स बिगिन टू क्लैप, अब क्या हुआ कि इंडियन ऑफिशियल्स और उनकी वाइफ्स ने क्लैपिंग शुरू कर दी, ताली बजाना शुरू कर दिया। मदर लुक्ड हम्बली समटाइम्स एट हर सन एंड समटाइम्स एट हर डॉटर इन लॉ स्टैंडिंग नियर हिम, माँ बेचारी कभी देख रही है वो अपने बेटे की तरफ, कभी बहू की तरफ की जो उनके साथ खड़े हैं, कि शायद वो कहेंगे कि माँ को गाना गाना नहीं आता है। मीनवाइल हर सन ऑर्डर्ड वेरी ग्रेवली, बड़ी सीरियसली माँ को ऑर्डर दिया, मदर माँ गाओ। आफ्टर दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट करने का क्वेश्चन नहीं था। शी सैट डाउन एंड इन अ थिन वीक एंड टैम्बलिंग वॉइस, वो बैठ गई और आवाज़ में, कैसी पतली आवाज़ में, शी बिगिन टू सिंग एन ओल्ड वेडिंग सॉन्ग, उसने एक पुराना वेडिंग सॉन्ग गाने लगी। वो हरियाणी माए हरियाणी बहने हरियाणी भागी भरिया है, कुछ इस तरह का जो है वो
folk song है which I actually don't know. Listen to your mother, listen to your sister, listen my son, Hariya is truly blessed. So it is a folk song which is, you know, in English translation I can make you understand. The Indian wives broke into laughter. जो Indian wives थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी. After 3 phrases mother fell silent. 3 phrases 3 वर्ड्स गाने के बाद माँ चुप होगी. एंड द वरांडा रिसाउंडेड विद applause. और पूरे बरामदे में बड़ी अप्रिशिएशन थी, प्रेज था, अप्लॉज था, क्लैपिंग थी. द साहिब जस्ट वुड नॉट स्टॉप क्लैपिंग. साहब जो है वो ताली बजाने से रुक नहीं रहे थे. श्यामनाथ अनॉयंस टर्न इनटू जॉय. जो श्यामनाथ का गुस्सा था मदर को देख के, जिस तरह वो चेयर पे बैठी थी, वो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राइड. हिज मदर हैड ब्रॉट न्यू कलर टू द पार्टी. उसकी मदर जो है वो पार्टी में नया कलर लाई थी. व्हेन द अप्लॉज सबसाइडेड, जब वो सारी प्रेज जो है वो कम हो गई, द बॉस आस्क्ड व्हाट हैंडीक्राफ्ट्स डू यू हैव इन पंजाबी विलेजेस. आपको पता ही होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. जो चीज़ें आप, जैसे आप कभी ज्वाला जी टेम्पल गए होंगे तो वहाँ पे बांस का बड़ा ज़्यादा सामान मिलता है. तो वी हार्डली एंटर इनटू दोज शॉप्स. उन शॉप्स में हम बड़ी मुश्किल से एंटर होते हैं. लेकिन जो फॉरेनर्स हैं दे लव टू बाय दीज थिंग्स. दे गो देयर, दे आस्क देम हाउ इज़ इट मेड, किस स्टफ़ का बना है, कैसे बना है, किसने बनाया. दे आस्क अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग. दे आर फॉन्ड ऑफ, यू नो, जो लोकल चीज़ों के लिए दे आर ग्रेट फैंस. तो उसी तरह से यहाँ पे नो ही इज़ आस्किंग अबाउट विलेज हैंडीक्राफ्ट्स इन पंजाबी विलेजेस के बारे में वो पूछ रहा है. श्यामनाथ वाज स्वेइंग विद जॉय. स्वेइंग मीन्स लहरा रहा था. क्यों? क्योंकि एक तो वो खुश था और उसने सबसे बड़ी बात उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था. ओ अल्लाह साहिब, मदर को तो बोलने ही नहीं दिया. कहता हाँ बहुत काम आता है. आई विल गिफ्ट यू अ होल सेट ऑफ देम. मैं आपको ना एक सेट गिफ्ट करूँगा पंजाबी विलेजेस का की जो हैंडीक्राफ्ट है. यू विल बी थ्रिल्ड टू सी देम. आप उनको देख के तो एक्साइटेड ही हो जाओगे. बट द साहिब शुक हिज हेड एंड सेड. साहब ने अपना सिर हिलाया नो और कहा नो आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अ शॉप. दुकान का तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. व्हाट इज़ मेड इन पंजाबी होम्स. पंजाबी होम्स में क्या बनाया जाता है. व्हाट डू वीमेन मेक देमसेल्व्स. घरों में लेडीज़ जो है वो किस तरह का हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं. थिंकिंग अ लिटिल श्यामनाथ रिप्लाइड. थोड़ा सा सोच के श्यामनाथ ने कहा गर्ल्स मेक डॉल्स एंड वीमेन मेक फुलकारीज. गर्ल्स जो है वो डॉल्स बनाती हैं और फीमेल जो हैं जो विमेन है दे मेक फुलकारीज. फुलकारी इज़ अ सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. कभी देखना आप जो है वो गूगल पे डाल के, फुलकारी इज़ अ सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. सूट्स पे, शर्ट्स पे, इसकी दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी होती है. आफ्टर एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन वॉट अ फुलकारी वॉज. उसने बहुत कोशिश की, वॉन्टेड टू एक्सप्लेन फुलकारी क्या थी. श्यामनाथ सेड टू हिज मदर. श्यामनाथ ने अपनी माँ को कहा डू वी हैव एनी ओल्ड फुलकारी इन द हाउस. क्या घर में कोई ओल्ड फुलकारी है. शी क्वाइटली वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट आउट एन ओल्ड फुलकारी ऑफ हर ओन. वो अपनी एक एम्ब्रॉयड्रीड फुलकारी लेके आई. द साहब एग्जामिन द कलरफुली एम्ब्रॉयड्रीड क्लोथ विद ग्रेट इंटरेस्ट. साहिब ने उस क्लोथ को बड़े इंटरेस्ट से देखा है. इट वॉज ओल्ड, ये पुराना था. इन प्लेसेज द थ्रेड्स वर वर्किंग ब्रेकिंग. कई जगह से धागे टूट चुके थे. एंड द क्लोथ वॉज स्प्लिटिंग. कपड़ा भी फट रहा था. सीइंग दिस श्यामनाथ सजेस्टेड. अब श्यामनाथ ने क्या सजेशन दिया, आइडिया दिया. दिस वन इज़ टॉन साहब कि ये फट गया है. आई विल गेट ए न्यू वन मेड फॉर यू. मैं नया बनवा दूंगा आपके लिए. मदर विल मेक इट. मदर द साहब लाइक्स योर फुलकारी वेरी मच. मेरी माँ बना देगी ना. अब फिर मदर की तरफ मुड़ा. मदर को क्या कहा. मदर साहिब लाइक्स फुलकारी वेरी मच. यू विल मेक वन जस्ट लाइक दिस फॉर हिम वोंट यू. आप इनके लिए ऐसी ही एक बनाओगी कि आप ऐसे फुलकारी नहीं बनाओगी. हिज मदर वॉज साइलेंट. देन शी सेड सॉफ्टली एंड विद टेरिपिडेशन. सॉफ्टली और धीरे से जो है वो बड़ी परेशानी में उसने कहा. क्योंकि अभी क्या हुआ है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच शी डिडंट वांट टू डू, शी वाज फोर्स्ड टू डू. सो नाउ शी इज़ पुट इन अ सिचुएशन वेयर शी इज़ रियली वरीड. क्यों? क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली. उनको दिखता नहीं है. शी इज़ इन टेरिपिडेशन. शी इज़ वेरी मच वरीड. उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि समहाउ शी मैनेज्ड फॉर सॉन्ग. समहाउ शी ट्राई टू टॉक टू द बॉस, जो उन्होंने कभी नहीं किया था. नाउ अगेन अ न्यू प्रॉब्लम इज़ देयर, दैट इज़ ऑफ मेकिंग फुलकारी. एम्ब्रॉयडरी है, बहुत बारीक काम होता है. तो शी इज़ बीइंग फोर्स्ड फॉर द सेम थिंग. हाउ मच कैन आई सी नाउ बेटा. हाउ कैन ओल्ड आइज सी. कि बेटा मैं इतना काम कैसे करूँगी, मेरी बूढ़ी आइज़ जो है वो कैसे इतना देख पाएंगी. सो दिस मच यू विल हैव टू प्रिपेयर टुडे. यू विल जस्ट लिसन टू वीडियो एंड व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल ओपन योर बुक first, then you will listen to the video accordingly as I am trying to give you a feel like that of a classroom.
अगर आप बुक के लाइंस के साथ चलोगे, मैं फुली आपको ट्रांसलेशन मेथड से करवा रही हूँ विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और आपने बुक्स खरीदनी है और आपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप सेपरेट मटेरियल परचेज करोगे। व्हाट्सएवर यू फील लाइक यू हैव टू गो थ्रू द मटेरियल एंड यू हैव टू प्रिपेयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और इसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई विल सेंड यू अ वीडियो नेक्स्ट वीक, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट क्लास है दैट वुड बी ऑन मंडे, तो मंडे को हम लोग इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को आई सेंड यू वीडियो ऑफ अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द दिस वेरी स्टोरी ऑल्सो। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू डू। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू होमवर्क रिलेटेड टू 2 poems का मैंने आपको होमवर्क दिया है, होप यू हैव डन इट। और अब आप लोगों को अब अपने मिड टर्म के लिए भी प्रिपेयर रहना है, बिकॉज हम लोगों ने आपके मिड टर्म कंडक्ट करवाने हैं। वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही दिया जाएगा, यू विल बी गिवन सर्टन टाइम। वो टेस्ट कैसा होगा, आपको जितना प्रिपेयर करवाया है ओबीएस है उसी में से होगा, कुछ ग्रामर में से होगा, कुछ टेक्स्ट बुक में से होगा। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सो गुड डे।